Hi 7th class, we have International Secondary Science 2 and today we are gonna solve our review exercise 3.6. Question number 1 we have the picture shows the three types of foods: corn oil, rice and chicken. So we have to tell that which food is mainly carbohydrates, which contain most proteins and which provides most energy per gram and explain why. Here we have answers. Which food mainly contain carbohydrates? Rice. Which food contains proteins? Chicken leg. And corn oil contains most energy per gram because it contains the highest amount of fat of the three foods. Question number 2 we have. A food scientist compared that fat content of three different protein sources: meat, cheese and fish. How many grams of food fat does 100 gram of cheese contain? In the USA, how many people want to cut their body mass? And a typical meal contains 100 gram of fish meat. How much more fat does the meat contain? So first of all, we have to divide 50 over 100 and multiply by 100. Then answer will be 50 gram. In USA, cheese contain a higher percentage of fat than the other sources of proteins. Many people want to cut their body mass, suggest why they are advised to avoid cheese. And a typical mass is 100 gram of fish. We have to. How much more fat does the meat contain? मीट में जो है वो और ज़्यादा कितना फैट होगा? तो ये हमारे पास है फैट्स 15 एंड देन 25 पे हमारे पास है 25 minus 10 is equal to 15 gram. Question number 3 we have. The table below shows three people's muscle mass as percentage of their body mass: A, B and C, and mass at 20, 10 and 30. We have to answer the questions. Which variable did the student test? तो स्टूडेंट ने कौन सा वेरिएबल टेस्ट किया है? The student test कौन सा वेरिएबल टेस्ट किया है? प्रोटीन फैट. Question number 2 we have. Suggest why she started each experiment first thing in the morning. तो because suggest why B's muscle mass is so low, क्योंकि उसने जो है वो प्रोटीन इनफ डाइट में नहीं ली. क्वेश्चन नंबर 4 है. क्रिस्प ब्रेड एंड पोटैटो क्रिस्प्स कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स. जैसा कि प्रोटीन की अमाउंट लिखी हुई है 12% है, 8% फैट है और 15% फाइबर है, जबकि पोटैटो क्रिस्प में 5% प्रोटीन्स हैं, फैट 28% है और फाइबर 4% है. तो प्रेडिक्ट विच फूड सप्लाइज मोर एनर्जी पर ग्राम. तो कौन सा फूड जो है वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो करता है? पोटैटो क्रिस्प्स जो हैं वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनके अंदर फैट की कंटेंट ज़्यादा है. क्वेश्चन नंबर 2 है. एक्सप्लेन हाउ द apparatus shown below could be used to test whether the test your prediction. अब इसमें यह है कि हम 1 ग्राम ऑफ ईच फूड जो है वो लेंगे और उसको बर्न करेंगे. उसके बाद टेम्परेचर मेजर करेंगे बिफोर का भी और आफ्टर का भी. अगर प्रेडिक्शन हमारी करेक्ट है तो डैट मीन्स देन बर्निंग पोटैटो क्रिस्प विल कॉज द बिगेस्ट इंक्रीज इन द टेम्परेचर. क्वेश्चन सी है. सजेस्ट 2 थिंग्स दैट मस्ट बी कंट्रोल टू मेक इट अ फेयर टेस्ट. एक तो ये कि वॉल्यूम ऑफ वाटर शुड बी measured accurately, mass of food and distance between the food and water. Give one reason why the apparatus does not measure all the energy in a piece of food. Some of the energy released by burning food could escape. ज़्यादातर एनर्जी कुछ एनर्जी जो है वो तो रिलीज़ होती है और वो ज़ाया हो जाती है. कुछ एनर्जी जो है वो इक्विपमेंट के अंदर रह जाती है. कुछ एनर्जी जो होती है वो फूड की वजह से भी वेस्ट हो जाती है. Next question number 5 है. Medical student tests with 2 different sources of carbohydrates to see how they affect the blood glucose level. On the first day, she ate some sugary sweets for breakfast. The next day, she had a bowl of starchy cereal. She made her blood sugar level every 30 minutes after eating such food. अभी उन्होंने हमें बताया है सीरियल्स और स्वीट्स के बारे में बताया है, ब्लड ग्लूकोज है. तो ये हमने बताना है, आंसर करना है कि विच वेरिएबल उसने कौन सा वेरिएबल जो है वो मेजर किया है. उसने मेजर किया है ब्लड ग्लूकोज लेवल और उसके बाद हर एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो ग्लूकोज लेवल जो था वो लोएस्ट होता गया है बिफोर ब्रेकफास्ट और फिर फूड ईटन अर्लियर इन द डे उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा.
सजेस्ट वन वेरिएबल शी शुड कंट्रोल, उसको कौन सा वेरिएबल कंट्रोल करना चाहिए? तो जो मैस ऑफ हर फूड जो भी उसने ईट किया है उसका मैस उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके बाद एक ग्राफ को हमने यूज़ करना है प्रेडिक्ट करने के लिए कि स्टूडेंट्स ने क्या फाइंड किया है। तो शुगरी टेस्ट जो था वो स्वीट जो थी वो ज़्यादा इंक्रीज़, रैपिड इंक्रीज़ हुआ ब्लड ग्लूकोज लेवल में, हायर पीक हुई ब्लड ग्लूकोज लेवल में, और शुगरी स्वीट्स कोज अ मोर रैपिड राइज एंड फॉल इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल। क्वेश्चन नंबर 6 है आमिर इज़ एन एथलीट, आमिर एक खिलाड़ी है। ही नीड्स मोर एनर्जी दैन मोस्ट पीपल एंड ही इज़ एडवाइज टू टेक इन 12,000 किलो जॉल पर डे। तो हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। एट लीस्ट 10% ऑफ योर बॉडी इन डेली एनर्जी इनटेक शुड कम फ्रॉम प्रोटीन रिलीज 16 kg पर ग्राम। हाउ मच प्रोटीन शुड आमिर टेक इन अ डे? आमिर को कितनी लेनी चाहिए? तो आमिर को जो है वो हम 10 को डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 12,000 से, और 16 kg जो है वो पर ग्राम से आती है, तो हमारे पास आ जाएगी 75 ग्राम जो है उसको लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आमिर ने अपने आप को जो है वो लार्ज चॉकलेट्स दिए हैं 36 ग्राम, उसमें सैचुरेटेड फ़ैट है और फैट जो है वो 37 किलो जॉल पर ग्राम जो है वो एनर्जी रिलीज़ करता है। तो उसकी हमें बतानी है हाउ मेनी किलो जॉल डज द आइसक्रीम गिव हिम, आइसक्रीम उसको कितने किलो जॉल देगी? तो 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 37 से, इट विल बी 1332। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज आमिर रिकमेंडेड एनर्जी इनटेक? तो अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट इंक्रीजेज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़। तो उसको जो है वो कौन सी जो है वो आमिर ईट्स फिश, एक्सप्लेन वाई फिश ऑयल इज़ अ गुड सोर्स ऑफ फैट। ऑयली फिश कंटेन्स अ लॉट ऑफ अनसैचुरेटेड फैट, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है वो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़ को कम करते हैं। क्वेश्चन 7 में हमारे पास एक टेबल दिया गया है ऑरेंज बनाना स्पेनिश और कैरेट का, इसमें विटामिन सी और ए का कंटेंट दिया गया है। तो हमने बताना है कुछ क्वेश्चंस के हमारे पास आंसर्स दिए गए हैं, उनके हमने आंसर्स करने हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट दैट वी नीड 75 ग्राम माइक्रोग्राम ऑफ विटामिन सी अ डे एंड हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ स्पेनिश वुड बी नीडेड। तो सिंपली हम 75 में से कितने माइनस कर देंगे? 25। यहाँ पे स्पेनिश है तो इसमें से 25 माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे उसको 100 से, तो हमें 300 ग्राम चाहिए। रिकमेंडेड डेली इनटेक विटामिन ए का जो है 0.9 ग्राम है, तो हमने सजेस्ट करना है सिंपली 100 एक्सेप्ट एनी कम्बिनेशन विच गिव्स एटलीस्ट 0.9 mg of vitamin A. For example, 100 grams of carrot, 22 grams of spinach and 200 grams of spinach. Vitamin C content is shown for row. How could the vitamin C content change if they were boiled? Vitamin C content जो है वो कैसे चेंज होगा? तो ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया गया है कि जब हम चीज़ों को बॉयल करते हैं तो उनका विटामिन सी कंटेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है. रिजा इज़ अ डॉक्टर, नॉट योर मैम रिजा. शी सीज फॉर पेशेंट्स विद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज. तो हमें बताना है कि पेशेंट ए, पेशेंट बी, पेशेंट सी जो है, पेशेंट बी डी में उनके ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें बताएंगे कौन कौन सी डिजीज़ है. तो पेशेंट ए को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, पेशेंट बी आयरन, पेशेंट सी प्रोटीन एंड पेशेंट डी विटामिन सी. उसके बाद है औरल हैज़ ब्रोकन लेग्स, और इनकी टांगें जो है वो ठीक नहीं हैं. उसका एक्सरे करवाया तो हमने बताना है अपीयरेंस ऑफ औरल लेग्स बोन्स की क्या बता रही हैं. तो ये बता रही हैं कि इन जो है ना बोन्स वो कर्व्ड हैं. ठीक है. उसके बाद बताना है हमने औरला स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इनडोर्स व्हेन शी गोज़ आउटसाइड. शी वेयर्स अ लॉट ऑफ सन ब्लॉक. हाउ डज दिस एक्सप्लेन औरला सिम्टम्स. तो ये है कि रिकेट्स की जो डिजीज़ है ना वो ठीक हो जाती है जब हम बाहर आउटसाइड जाते हैं तो सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है, विटामिन डी मिलता है, जिसकी वजह से जो है वो हमें कम जो है वो चांसेस होते हैं. लेकिन औरला हैज़ डेवलप्ड रिकेट्स बिकॉज शी इज़ंट गेटिंग इनफ सनलाइट. उसको तो सनलाइट मिली इनफ नहीं है, दैट्स वाई उसको ये प्रॉब्लम हुआ है. Question number 10 and the last question is, in 1747 James Lind tried to find the best cure for scurvy. He predicted that anything that contained acid would work. He tried each possible cure on 2 sailors with scurvy. The table में बताया है एप्पल ड्रिंक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, विनीगर है, ऑरेंज लेमन है. और इम्प्रूव किससे हुआ है? सिर्फ एप्पल ड्रिंक से. क्योर्ड किससे हुआ है? ऑरेंज से. और वर्स कंडीशन हुई है विनीगर और सल्फ्यूरिक एसिड से. तो हमने बताना है विच वेरिएबल डिड लिंड चेंज ड्यूरिंग दिस इन्वेस्टिगेशन. तो उसने सोर्स ऑफ एसिड जो है वो चेंज किया है. पहले उसने एप्पल ड्रिंक दिया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड दिया, फिर विनीगर दिया और फिर ऑरेंज जूस दिया. व्हाट वेरिएबल डिड शी ऑब्जर्व? वेदर ईच सेलर्स कंडीशन इम्प्रूव्ड आफ्टर 1 week. डज द एविडेंस सपोर्ट द आइडिया? नो. आइडिया जो है वो एविडेंस सपोर्ट नहीं करा आइडिया को, क्योंकि कंडीशन होती थी वो बैड होती गई ना. उसके बाद अदर साइंटिस्ट थॉट दैट द सिट्रिक एसिड इन फ्रूट्स मस्ट क्योर स्कर्वी. They tested the idea but it did not work. What did the fruits really provide?
तो विटामिन सी इन द सिट्रस फ्रूट क्योर द स्कर्वी, क्योंकि विटामिन सी कंटेंट फ्रूट्स में होता है जो कि स्कर्वी को जो है वो प्रिवेंट करता है।